Hello learners, this is Meenu and welcome back to my channel Learn Economics. From today we are starting the syllabus of term 2. So the chapter we are going to study today is production and cost. This is part 1 of this chapter. So without any delay, let's get started. This is the overview of this chapter. First we understand the meaning of production and then we will understand what is the production function both in the short run and long run. Then what is total product, average product and marginal product, and what are the shapes of these curves, that is total product curve, average product curve and marginal product curve. Then we will understand what is the law of diminishing marginal product and the law of variable proportion, which we will study under short run production function. Then we will understand what are returns to scale, which we will study under long run production function. And finally we will understand the meaning of cost both in short run and long run, and what are the various types of cost like total cost, average cost and marginal cost in short run as well as long run. So let's get started. See students, before you study production function, it is very important to understand the meaning of production. Students, production एक ऐसी प्रोसेस है in which we transform resources or inputs into final goods and services, जिसको हम बोलते हैं output, and the resources or inputs which can be transformed are of two types: tangible inputs and intangible inputs. Tangible inputs are those inputs which have a physical appearance, जिनके क्या होती है, एक physical appearance है, means जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, feel कर सकते हैं. For example, raw materials, land, labor, capital, etc. Whereas intangible inputs are those which do not have any physical appearance, जिनको ना हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना ही feel कर सकते हैं. Like ideas which resides in the mind of a person, knowledge, his experience, his education, skills, information. All these are the examples of intangible inputs. And the final goods and services are those goods and services which are meant for final consumption. जो किसके लिए बने हैं? Final consumption के लिए बने हैं, means which cannot be transformed further through production process, जिनको हम further transform नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? Final goods and services और output. For example, wood क्या है? Is a raw material, right? जो हमको forest से मिलती है. Now to convert this wood into a furniture article, जो कि क्या होगा? Output या फिर final goods and services की कैटेगरी में जिसको हम रखते हैं. तो इस वुड को एक फर्नीचर आर्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो वुड ही चाहिए. दूसरा, हमें कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स चाहिए जिससे हम इस वुड को एक शेप दे सके, उसकी कटिंग कर सके. तीसरा, लेबर चाहिए, मीन्स वर्कर्स चाहिए जो काम करें. फोर्थ, हमें एक पीस ऑफ लैंड चाहिए जिस पर हम इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन कर सकें और इस वुड को कन्वर्ट कर सकें इनटू दिस फर्नीचर आर्टिकल. एंड दिस फर्नीचर आर्टिकल कैन बी एनीथिंग, लाइक बेड हो गया, सोफा हो गया, टेबल हो गया. सेम विद कॉपर. कॉपर को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी यूटेंसिल में, लाइक कॉपर जग और ग्लास, तो उसके लिए जो हमें इनपुट्स चाहिए टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ यूटेंसिल. सेम विद पोटैटो. पोटैटो को अगर हम चिप्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले पोटैटो चाहिए, सॉल्ट चाहिए, या फिर जो भी फ्लेवर का हम चिप्स बनाना चाहते हैं. हमें पैकेट्स चाहिए जिनमें हम इन चिप्स की पैकेजिंग कर सके. लेबर चाहिए, मशीनरी चाहिए. एंड टू परचेज ऑल दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वी वांट सम मनी, वी नीड सम मनी. तो स्टूडेंट्स, इन सारे इनपुट्स और रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म किया जाता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस. एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज टू सेटिस्फाई द डिमांड फॉर सच गुड्स एंड सर्विसेज. अरे भाई, अगर किसी चीज़ की डिमांड ही नहीं होगी तो उसका प्रोडक्शन क्यों होगा?
प्रोड्यूसर को अपना लॉस थोड़े ना करना है, राइट। तो प्रोडक्शन होता है किस लिए है? टू सेटिस्फाई द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, these are the meanings of inputs and outputs that I have written over here. तो inputs are those resources which are used to create other goods and services, मतलब कि ऐसे resources जिनको हम दूसरे goods and services को बनाने के लिए use करते हैं, like labor. Labor means its working hours, fuel, power, land, wood, steel sheets, knowledge, skills, his education, his experience. All these are the examples of inputs. Whereas output on the other hand are the final goods and services produced in a specific time period. Final goods and services मैंने just अभी बताया था, वो goods and services which are meant for final consumption, जो finally consume करने के लिए बने हैं, जिनको हम further production process के द्वारा transform नहीं कर सकते हैं. For example, furniture articles like bed, sofa, table, pen हो गया, copy हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, कार्स, क्लॉथ्स, हाउसेस, स्कूल बैग्स, एटसेट्रा. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, what is a production function? See students, we can understand production function by bifurcating this term into two parts. One is production and other is function. प्रोडक्शन का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया था, जल्दी से बताइए क्या होता है. वेरी गुड. इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स किसमें? इनटू आउटपुट. और फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन हो गया अ रिलेशनशिप, राइट. तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो गया बच्चा? प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स यूज्ड एंड आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म. इनपुट्स एंड आउटपुट के बीच का एक रिलेशनशिप को हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन. और स्टूडेंट्स, इसको फंक्शन क्यों बोलते हैं? फंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे हमें यह पता लगता है कि इनपुट्स की कितनी अमाउंट यूज करने पर या फिर इनपुट्स के किस कॉम्बिनेशन से या अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाने पर हमें आउटपुट की कितनी क्वांटिटी मिलती है. मतलब कि यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशनशिप बन जाता है, इसलिए हम प्रोडक्शन फंक्शन को बोलते हैं एक फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स यूज्ड एंड आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म. फॉर एग्जाम्पल, एक फर्म के पास 2 यूनिट्स ऑफ लेबर है प्लस 1 यूनिट ऑफ कैपिटल है इन द फर्स्ट केस. तो इन 2 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 1 यूनिट ऑफ कैपिटल को अगर वो यूज करता है तो दिस फर्म कैन प्रोड्यूस 2 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट. ऑन द अदर हैंड, अब वो इस कॉम्बिनेशन को चेंज करती है. अब वो लेबर की 1 यूनिट को रिड्यूस करती है, मीन्स 2 यूनिट से 1 यूनिट कर देती है, 1 यूनिट ऑफ लेबर, और दूसरी तरफ कैपिटल की 1 यूनिट को इंक्रीज कर देती है, दैट इज 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल. इस कॉम्बिनेशन को यूज करने पर इट कैन प्रोड्यूस 3 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट. राइट. तो स्टूडेंट्स, यहां से इस फॉर्म को क्या पता लगता है कि if it reduces the amount of labor and increases the amount of capital, then it can increase its output of chocolate. Means वो यहाँ से क्या पता लग जाएगा उसको, that labor is less efficient in the production of chocolate, whereas capital is more efficient in the production of chocolate. तो स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन फंक्शन से बेसिकली हमें पता लगता है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स इन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. स्टूडेंट्स, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को हम प्रोडक्शन फंक्शन में कांस्टेंट मानते हैं, मीन्स ये सेम रहेगी, इम्प्रूव नहीं होगी. तो प्रोडक्शन फंक्शन से हमें पता लगता है कि डिफरेंट
फैक्टर कॉम्बिनेशन से हम कितने क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और प्रोडक्शन फंक्शन में हम उसी कॉम्बिनेशन को कंसीडर करेगा जो प्रोड्यूस कर सकता है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। मीन्स हमें जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, वी हैव टू यूज दिस रिसोर्सेज इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर और इन द मोस्ट प्रोडक्टिव मैनर। और हमें प्रोडक्शन फंक्शन से दूसरा पता लगता है दैट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब कि एक लेवल ऑफ आउटपुट हमारे पास अब ऑलरेडी है, हमने डिसाइड कर लिया है कि इतनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, तो अब उसको कितनी क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल, कि एक फर्म के पास 30 यूनिट्स ऑफ लेबर हैं एंड 15 यूनिट्स ऑफ मशीन्स हैं। ठीक है, तो अब इसके पास इनपुट्स की यूनिट्स हैं, तो अब इस फर्म को देखना है कि इन इनपुट्स को एफिशिएंटली यूज करके ये कितने क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस में अब इस फर्म ने डिसाइड कर लिया है कि ये 250 यूनिट्स जो है आउटपुट की वो प्रोड्यूस करेगी। अब इन 250 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसको कितनी क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स लगेगी। दिस इज द सेकेंड केस। और ये दोनों ही चीज़ें हमें प्रोडक्शन फंक्शन से पता लगती हैं। एंड सिंबॉलिकली और मैथमेटिकली हम प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं दैट Q इज अ फंक्शन ऑफ x1, x2, x3 up to xn. Q represents output of the firm, F represents functional relationship, and x1, x2, x3 and up to xn are the amounts of factor 1, factor 2, factor 3 and factor n. और ये जो फैक्टर्स है बच्चा, ये कुछ भी हो सकता है। ये लैंड हो सकता है, दिस कैन बी लेबर, मशीनरी, इक्विपमेंट्स हो सकते हैं बच्चा, मनी हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, एफिशिएंसी हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हम बेसिकली दो ही फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, दैट इज़ लेबर एंड मशीनरी। बाकी सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट अज्यूम करके चलते हैं। एंड प्रोडक्शन फंक्शन कंसीडर्स ओनली द एफिशिएंट यूज ऑफ इनपुट्स। एफिशिएंटली यूज करेंगे तभी तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट हमें मिलेगी। तो प्रोडक्शन फंक्शन में हम मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को पढ़ते हैं या फिर मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को शो करते हैं दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स इन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। मीन्स इन द प्रोडक्शन फंक्शन द एफिशिएंट यूज ऑफ इनपुट्स इज कंसीडर्ड ओनली। Now let us try to understand production function with the help of an example that I have written over here. Let us assume that a firm manufactures shoes with the help of two factors or two inputs, और वो factors और inputs क्या हैं? One is labor and other is machines. तो हम इस firm के production function को कैसे लिख सकते हैं? That QS, that is the output of S, is a function of workers and machines. Means the production function of this firm shows the maximum number of shoes that can be produced with the help of given number of workers and machines. Now let us suppose कि जो इस फर्म का जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो इस तरीके से दिया है that 500 is a function of 10 workers and 8 machines. तो क्या बोल सकते हैं that this firm can produce maximum 500 units of shoes by employing 10 workers and 8 machines. Right? Moving forward, students, जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होता है that describes technological relation between inputs and outputs and not an economical relationship. ऐसा क्यों students? क्योंकि जो amount of output या फिर जो अमाउंट ऑफ आउटपुट जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। मीन्स एक फर्म ने
लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज़ किया है या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया है। एंड बोथ इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर एक्सप्रेस्ड in physical terms and not in monetary terms. Physical terms means in quantitative terms. यहाँ पर हम इनपुट एंड आउटपुट को किस चीज़ में एक्सप्रेस करते हैं? क्वांटिटेटिव टर्म्स में। मीन्स कितने क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स की ज़रूरत है ताकि हम इतने क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें। तो यहाँ पर हम बेसिकली बात करते हैं फिजिकल टर्म्स में एंड नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स मीन्स हम वैल्यू की बात नहीं करते हैं कि इतनी वैल्यू इनपुट्स की है और उससे इतनी वैल्यू का आउटपुट प्रोड्यूस किया है। हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल टर्म्स में बात करते हैं, राइट? तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो गया? टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप हो गया बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। नाउ स्टूडेंट्स, हम बार बार यूज कर रहे हैं फैक्टर्स और इनपुट्स। तो इन इकोनॉमिक्स वी हैव 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड। तो बाय लैंड वी मीन लैंड इन इट्स फिजिकल फॉर्म। किस फॉर्म में स्टूडेंट्स? फिजिकल फॉर्म में, मीन्स इन इट्स फिजिकल स्पेस। लाइक एग्रीकल्चर लैंड हो गया या फिर लैंड यूज फॉर सम कमर्शियल पर्पस लाइक फैक्ट्री लगाने के लिए या फिर कोई इंडस्ट्री या प्लांट लगाने के लिए। तो वो किसका फॉर्म हो जाएगा? दैट फॉर्म्स लैंड। या फिर हम बोल सकते हैं ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लैंड। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज ईदर ऑन द सर्फेस और बिलो द सर्फेस और above the surface of the earth is called land, such as rivers हो गए, oceans हो गया, land in its physical form हो गया, mountains, mines, forest, soil, etc. all are the examples of land. Second factor of production is labor. Labor means people who are available in the economy to transform resources or inputs into goods and services. And people से मतलब हुआ all human efforts that assist in production is labor. And these efforts can be mental or physical. Mentally means ये हो सकते हैं स्किल्स हो, एफर्ट्स हो, एबिलिटीज़ हो, नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, एजुकेशन हो, क्वालिफिकेशन हो। और फिजिकली मीन्स बच्चा वर्किंग आवर्स ऑफ द लेबर। क्या? वर्किंग आवर्स ऑफ द लेबर। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? ये इकोनॉमिक्स में लेबर को फॉर्म करती है। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल। कैपिटल मीन्स मनी एज वेल एज फिजिकल एसेट्स। In all man-made resources used in the production process such as machinery हो गया बच्चा, tools हो गया, equipments हो गया, wealth हो गया, inventories हो गया, all these are the examples of capital. Now the fourth factor of production is entrepreneur. Students, entrepreneur means वह व्यक्ति, वह इंसान, वह person who brings all the other 3 factors of production at one place to produce something. तो वो कौन हो जाता है? उसको हम बोलते हैं entrepreneur. So there are 4 factors of production in economics which are land, labor, capital and entrepreneur. Now moving forward, now we will understand factor inputs which are divided under 2 categories. First is fixed factors and second is variable factors. Students, fixed factors are those factors of production which remains same or which do not change, which change in the level of output of the firm in the short run. Means चाहे एक firm 100 units produce करे किसी commodity की, चाहे वो 1000 units produce करे, इन फैक्टर्स की जो क्वांटिटी है वो क्या रहने वाली है? वो सेम रहने वाली है, वो फिक्स रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी। द क्वांटिटी ऑफ दीज फैक्टर्स रिमेन्स द सेम इवन इफ आउटपुट इज ज़ीरो। चाहे आउटपुट ज़ीरो हो जाए, अगर इनकी 20 यूनिट्स यूज़ हो रही थी तो वो 20 ही रहेंगी। इनकी अमाउंट को ना हम इंक्रीज़ कर सकते हैं ना हम डिक्रीज़ कर सकते हैं, इवन व्हेन द आउटपुट ऑफ द फर्म इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। मतलब कि अगर
एक फर्म 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रही थी और इसने एम्प्लॉय किया हुआ था 10 यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। तो जब ये अपने आउटपुट को इंक्रीज कर देगी टू 1000 यूनिट्स तो भी ये 10 यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स ही यूज़ करेगी। इन फैक्टर्स की क्वांटिटी को ना तो एक फर्म इंक्रीज कर सकती है ना ही डिक्रीज कर सकती है ड्यूरिंग शॉर्ट रन, और चाहे आउटपुट ज़ीरो हो जाए तो भी वो सेम क्वांटिटी ही यूज़ करेगी। इन द एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ फिक्स्ड इनपुट्स आर फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस प्रीमाइसेस, लैंड, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स, प्लांट साइज एटसेट्रा। On the other hand, variable factors are those factor inputs which changes with change in the level of output of a firm। मतलब कि अगर आउटपुट 100 यूनिट्स से 1000 यूनिट्स होता है तो इसके साथ जो वेरिएबल इनपुट्स की जो क्वांटिटी है, सपोज करते हैं पहले 10 यूनिट्स यूज़ कर रहे थे, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सपोज कि अब वो 100 यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं। तो शॉर्ट रन में इट इज़ द वेरिएबल फैक्टर्स जिनकी क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज की जा सकती है इफ़ अ फर्म वांट्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स आउटपुट लेवल। शॉर्ट रन में अगर एक फर्म अपने आउटपुट को इंक्रीज करना चाहती है तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है एक फर्म के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल्स हो गया, लेबर हो गया, फ्यूल हो गया, पावर हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। सो इन द शॉर्ट रन देर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, वन इज फिक्स्ड फैक्टर एंड अदर इज वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर्स की क्वांटिटी जो है कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, इवन इफ द लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, या चाहे आउटपुट जो है ज़ीरो हो जाए। वेयर एज वेरिएबल फैक्टर्स के क्वांटिटी को एक फर्म इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। और शॉर्ट रन में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है अगर आउटपुट को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। और वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटी ज़ीरो भी हो सकती है इवन इफ द लेवल ऑफ आउटपुट इज ज़ीरो। और एग्जाम्पल्स क्या हो गए वेरिएबल फैक्टर्स के? रॉ मटेरियल्स, लेबर, फ्यूल, पावर एटसेट्रा। राइट, नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्ट रन and long run. First we understand what is short run. See students, short run एक ऐसा टाइम पीरियड होता है in which a firm can change its output only by changing the variable factors, whereas fixed factors like plant size, land, building, machinery etc. remains the same. अभी हमने पढ़ा था कि फिक्स्ड फैक्टर्स जो है शॉर्ट रन में फिक्स रहते हैं। मतलब कि अगर शॉर्ट रन में एक फर्म अपने आउटपुट को चेंज करना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपने वेरिएबल फैक्टर्स के क्वांटिटीज़ को चेंज करना पड़ेगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। सपोज कि एक फर्म के पास एक ऑर्डर आता है जो कि शूज़ का प्रोडक्शन करती है कि उनको 2000 यूनिट्स ऑफ शूज़ चाहिए विद इन 2 days। राइट, ऑर्डर क्या आया है कि 2000 यूनिट्स ऑफ शूज़ चाहिए विद इन 2 days। तो स्टूडेंट्स अब अगर ये फर्म अपने एग्जिस्टिंग फैक्टर्स को या इनपुट्स को एफिशिएंटली यूज़ करती है तो ये मैक्सिमम 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सकती है विद इन 2 days। मतलब कि एक दिन में 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सकती है। बट इट हैज़ टू प्रोड्यूस 2000 यूनिट्स ऑफ शूज़ विद इन 2 days। तो इसके लिए वो क्या कर सकती है? इट कैन हायर मोर वर्कर्स। राइट, ज़्यादा वर्कर्स को हायर कर सकती है। दूसरा, ज़्यादा रॉ मटेरियल को परचेज कर सकती है। राइट, जैसे कि फोम हो गया, फैब्रिक हो गया, रबर वगैरह, या जो भी और रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है शूज़ को बनाने के लिए। तीसरा, ऐड ऑन कर सकती है वो फ्यूल को, इलेक्ट्रिसिटी को। राइट, या फिर वर्किंग आवर्स को वो इंक्रीज कर सकती है। जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं उनके वर्किंग आवर्स को इंक्रीज कर सकती है जिसके लिए वो उनको एक्स्ट्रा पे करेगी। बट
इट कैन नॉट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर्स के क्वांटिटीज़ को इंक्रीज नहीं कर सकती है, जैसे कि मशीनरी हो गया, फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया, राइट, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हो गया, लैंड हो गया, इन चीज़ों के क्वांटिटीज़ को वो इंक्रीज नहीं कर सकती है। बच्चा आप खुद सोचिए कि 2 डेज के अंदर अंदर क्या मशीनरी को, बिल्डिंग को, लैंड रिक्वायरमेंट्स जो है उस हिसाब से इक्विपमेंट्स को इनको इंक्रीज किया जा सकता है within a time period of 2 days? No, it's not possible. So in the short run, a firm can vary the quantity of variable inputs only in accordance with the change in the level of output. तो अगर वो अपने इस आउटपुट को इंक्रीज करना चाहती है फ्रॉम 1000 यूनिट्स टू 2000 यूनिट्स, तो वो अपने वेरिएबल फैक्टर्स के क्वांटिटीज़ को चेंज करेगी, वेरिएबल फैक्टर्स को ज़्यादा हायर करेगी और फिक्स फैक्टर्स के क्वांटिटी को उतना ही रखेगी। और ये एफिशिएंट भी नहीं होगा, इकोनॉमिकली भी ये ठीक नहीं होगा कि वो 2 दिन के अंदर अपने फिक्स्ड फैक्टर्स के क्वांटिटीज़ को इंक्रीज़ करे, क्योंकि हो सकता है कि आज उसके पास 2000 यूनिट्स का जो ऑर्डर है वो है, लेकिन 2 दिन के बाद कोई फिर से उतना बड़ा ऑर्डर उस फर्म को ना दे, राइट। तो शॉर्ट रन में एक फर्म सिर्फ और सिर्फ अपने वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करती है टू चेंज इट्स लेवल ऑफ आउटपुट। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज लॉन्ग रन। स्टूडेंट्स, लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड होता है इन विच आउटपुट कैन बी वेरिड बाय वेरिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है, कोई भी फैक्टर फिक्स्ड नहीं है। ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और ऑल द फैक्टर इनपुट्स आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। मतलब कि लॉन्ग रन में इतना टाइम होता है, या फिर हम बोल सकते हैं सफिशिएंट टाइम होता है एक फर्म के पास टू एडजस्ट ऑल इट्स इनपुट्स एज पर द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि अगर एक फर्म को अपने आउटपुट को इंक्रीज करना है तो इसको किसी भी फैक्टर को फिक्स्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। इट कैन वेरी ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम पीछे वाला एग्जाम्पल ही लेते हैं, वही 2000 यूनिट्स का, कि 2000 यूनिट्स का ऑर्डर है, बट अब टाइम पीरियड फर्म के पास है 3 मंथ्स का, कि 3 मंथ्स के अंदर ये ऑर्डर इनको तैयार करके देना है। तो 3 मंथ्स में तो वो ज़्यादा, मतलब कि अपनी फैक्ट्री की बिल्डिंग को भी इंक्रीज कर सकती है, मतलब कि एक और फैक्ट्री की बिल्डिंग को हायर कर सकती है, परचेज कर सकती है, रेंट पे ले सकती है। दूसरा, वर्कर्स को इंक्रीज कर सकती है, जो कि वेरिएबल फैक्टर है, उनको तो पहले भी कर सकते थे। अब मशीनरी की क्वांटिटी को भी इंक्रीज कर सकती, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को ज़्यादा लगा सकती है, एम्प्लॉय कर सकती है। तो बेसिकली लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या कोई भी फैक्टर इनपुट जो है फिक्स्ड नहीं होता है। ऑल द फैक्टर इनपुट्स आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन, और आउटपुट को उसके हिसाब से, आउटपुट के हिसाब से आप अपने फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इज द शॉर्टन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्टन प्रोडक्शन फंक्शन बच्चा कुछ नहीं है, वही सेम चीज़ है, यहाँ पर भी वही चीज़ें रिपीट हो रही है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है इन विच आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ओनली बाय चेंजिंग द वेरिएबल इनपुट वाइल कीपिंग द अदर इनपुट्स अनचेंज्ड। मतलब कि शॉर्टन प्रोडक्शन फंक्शन में भी जो फिक्स्ड फैक्टर्स है वो फिक्स्ड रहेंगे, वेरिएबल फैक्टर्स को आप चेंज कर सकते हो। बस इसको मैथमेटिकली और इक्वेशन के फॉर्म में हमने ऐसे लिख दिया है। यहाँ पर we have considered only 2 factors of production, one is labor and other is capital, and in the short run output becomes a function of labor and capital, where labor is a variable factor which can be changed according to the requirements of the output, and capital is a fixed factor जिसके ऊपर हमने बार का यूज़ किया है, जो शो करता है कि capital remains constant in the short run। तो शॉर्ट रन में अगर आउटपुट को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, देन द फर्म हैज़ टू इंक्रीज और डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ लेबर ओनली, वेयर द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल रिमेन्स फिक्स्ड और रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एंड एज देयर इज चेंज इन वेरिएबल इनपुट ओनली, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल इनपुट में चेंज होता है, वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज होता है शॉर्ट रन में, तो जो रेशो होगा बिटवीन डिफरेंट इनपुट्स टेंड्स टू चेंज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट। मीन्स पहले 1:2 था, फिर 1:3 हो सकता है, 1:4 हो सकता है, 1:6 हो सकता है, क्योंकि ये जो रेशो है ये है फिक्स्ड फैक्टर की, यहाँ पर फिक्स्ड फैक्टर है, और जो ये रेशो है स्टूडेंट्स
ये हो जाती है वेरिएबल फैक्टर की, क्योंकि शॉर्ट रन में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटीज़ को चेंज किया जा सकता है अगर आउटपुट को चेंज करना है। तो दैट्स वाई द रेशियो बिटवीन डिफरेंट इनपुट्स चेंजेस विद चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, राइट। नेक्स्ट इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। बच्चा वही सेम चीज़ जो अभी हमने लॉन्ग रन में पढ़ी थी, दैट इट इज़ अ सिचुएशन वेयर द आउटपुट कैन बी इंक्रीज बाय चेंजिंग ऑल द इनपुट साइमल्टेनियसली। मतलब कि आप सारे इनपुट्स को, कोई भी इनपुट, कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं है, ऑल द इनपुट्स आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन, सो यू कैन चेंज ऑल दीज इनपुट साइमल्टेनियसली एंड इन द सेम proportion आ रहेगा यहाँ पर, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। एंड इन द इक्वेशन, in the form of equation, we can write the long run production function like this, that Q is a function of labor and capital, and C students, short run में हमने capital के ऊपर use किया था बार का symbol, but in the long run हमने कोई भी बार का symbol use नहीं किया। It means both labor and capital are variable factors in the long run, means we can change, or a firm can change both these factors to change its level of output, right? And here all the inputs are variable, so the ratio between different inputs tends to remain the same at different levels of output। क्योंकि long run में सारे factors variable है, कोई एक factor variable नहीं है, तो जो ratio होगी between different inputs वो same रहेगी at different levels of output। For example, पहले अगर 5 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज़ कर रहे थे एंड 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज़ कर रहे थे, तो जब ये इंक्रीज़ हो गया, अगर आउटपुट को इंक्रीज़ करना है, सपोज कि यहाँ पर 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट जो है प्रोड्यूस हो रही थी, अब अगर आउटपुट को इंक्रीज़ करना है फ्रॉम 10 यूनिट्स टू 20 यूनिट्स, तो लेबर को कर दिया जाएगा 10 एंड कैपिटल को कर दिया जाएगा 20। फर्दर अगर इंक्रीज़ करना है आउटपुट को फ्रॉम 20 यूनिट्स टू 40 यूनिट्स, तो फर्दर लेबर को कर दिया जाएगा 15 एंड कैपिटल को कर दिया जाएगा 30। मीन्स जो रेशो है और द प्रपोर्शन बिटवीन दीज फैक्टर्स दैट रिमेन्स द सेम। यहाँ पर क्या है 1:2, राइट। यहाँ पर भी क्या है 1:2, एंड सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो द प्रपोर्शन इज 1:2, राइट। तो जो प्रपोर्शन है या फिर जो रेशो है दैट रिमेन्स सेम बिटवीन द इनपुट्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट, राइट। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या हो गया, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में आप सारे इनपुट्स को चेंज कर सकते हो साइमल्टेनियसली एज पर द रिक्वायरमेंट्स। मीन्स अगर आउटपुट को इंक्रीज करना है तो आप सारे इनपुट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, अगर आउटपुट को डिक्रीज करना है तो यू कैन रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ ऑल द इनपुट्स in the long run. Okay, now students, this was all about this lecture, and I really hope that things will be crystal clear to you as I try to explain each and every concept in a very simplified way. But if you still have any query, please let me know in the comment section, and if you found this video useful, like it, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you very much, and keep learning with Learn Economics.